Hi and welcome to our next session called Speak Up Q&A. You all know that this is about you and for you, because this is the platform where you can come and say what you want to say or ask the question that you want to ask or whatever is there in your mind. The question that we are asking tonight is that the Bollywood losing perception, Bollywood losing impression, Bollywood losing your faith is because of them not standing for Sushant Singh Rajput, or is it because of the number of controversies, number of cases that the industry is facing during the last 18 months? What do you believe? How much has the industry changed before and after the death of Sushant Singh Rajput? I'll just share the link. You can come and connect and speak on any of the topic, any of the subject, any on the point that we have discussed tonight. I've already shared the link. You can use that to connect and speak up during our session called Speak Up Q&A, which is all about what you want to say. We are meeting after a long time in this segment, so I hope there would be people who would be connecting, and the topic is close to your heart, that is Sushant Singh Rajput. फेमा वायलेशन जो है वो बहुत सीरियस हो गया है, बहुत सारे लोग इसके रडार में हैं. अब सवाल यह है कि क्या अमिताभ बच्चन की भी क्वेश्चनिंग करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, या ऐश्वर्या राय के हस्बैंड अभिषेक बच्चन को भी बुलाएगी. ऐश्वर्या राय बच्चन को तो आज बुला लिया गया, क्या दोबारा बुलाया जाएगा ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन ये फैमिली नंबर 1 ऑफ बॉलीवुड है. अगर फैमिली नंबर 1 ऑफ बॉलीवुड कंट्रोवर्सी में है तो फिर बचा क्या है इस इंडस्ट्री में? अब इसके बाद बचा क्या है? व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट? Because it is not about Aishwarya Rai Bachchan, it is not about Amitabh Bachchan, it is not about Abhishek Bachchan, it is not about the frustration that Jai Bachchan has. It is only about the fact that this industry is actually struggling. सिर्फ 3 चीजें इस इंडस्ट्री के बारे में आज लोग बात करते हैं: कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी. और ये अच्छी चीज नहीं है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर आप लगातार कंट्रोवर्सी में रहेंगे तो फिर आपका परसेप्शन हिट करता है, आपका परसेप्शन हिट लेता है, आपका जो लोगों के बीच आपका जो इंप्रेशन है वो हिट करता है, वो हिट लेता है, और जो पूरा रसूख है, ऑरा जिसको आप बोलते हैं, that aura takes a big hit. Because for me, till Sushant Singh Rajput happened, and for many more like me, people like Amitabh Bachchan were like semi-gods. आज अमिताभ बच्चन का भी वो स्टेटस नहीं है कि कोई था. वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि अमिताभ बच्चन, according to people, should have stood for a young man like Sushant Singh Rajput, being the senior most actor in the industry. But Amitabh Bachchan did not stand up. The result is पब्लिक परसेप्शन अमिताभ बच्चन के लिए भी बदल गया. अब कितना अमिताभ बच्चन कितने जस्टिफाइड है, नहीं, मैं इस पे कमेंट करने वाला कोई नहीं हूं. आई एम श्योर ही मस्ट बी जस्टिफाइड, मस्ट हैव हैड हिज ओन रीजंस. बट पब्लिक इस बात को नहीं मानती या एक्सेप्ट नहीं करती कि वो किसी रीजन से नहीं आए. उनको लगता है शायद अमिताभ बच्चन इज टू बिग टू कमेंट ऑन दिस इशू, एंड क्योंकि उन्होंने कमेंट नहीं किया इसलिए हम उन्हें पसंद नहीं करते. दिस इज व्हाट हाउ द पीपल फील टुडे. मैनी हैज जॉइंड, सो लेट्स स्टार्ट विद मैनी. So, first of all, I want to really congratulate you on your efforts of compiling, what has happened in the past, since it's the end of the year, and all these names and all these pictures and the efforts you've put in to, put them in an order and basically revisit the names that have come over a period of a year and a half. And I think it's very important for us to understand how poetic justice is actually happening in its own way. I have kind of missed your brief in parts. So I couldn't, for some reason, I couldn't really listen to you because of social reasons. But what I would like to say is Jacqueline Fernandez, she worked with him in Drive. We have already spoken about how Drive was manipulated, and Jacqueline Fernandez was allowed to work in Race 3 while Drive ki shooting was happening, and the movie was put on hold for some time, and Sushant Singh Rajput wasn't. Now, Jacqueline Fernandez also has a reputation of being somebody's very good friend. We've seen her being photographed during the COVID time. She was in somebody's farmhouse. So all these things, actually, if you put them together, join the dots, in some form or the other.
तो मेरे हिसाब से ये जितने भी most of them, I wouldn't say all of them, but most of them have come into limelight because they've had some or the other kind of role in this whole Sushant Singh Rajput's case. So getting a summary of whatever has been happening, I think it's a great way to kind of look back and understand how justice is happening in its own way. So what is justice? That's why I keep talking about this, and I said this long back. Justice सिर्फ वो नहीं है जो सवाल का जवाब दे दे. Justice तो वो भी है ना जो आपको किश्तों में मिलता है, उसको आप पोएटिक जस्टिस बोलते हैं. आपको नजर नहीं आता लेकिन जस्टिस हो रहा है. Yes. आप मुझे बताइए एक भी शख्स ऐसा है क्या जिसका जिक्र सुशांत सिंह राजपूत के केस में या सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ के आसपास हुआ हो और वो पिछले 18 महीने के दौरान किसी ना किसी रीजन से न्यूज में ना रहा हो? आप मुझे एक भी नाम बता दीजिए, ऐसा कोई है? सर, टू बी रियली फ्रैंक, आई डोंट थिंक सो सलमान खान का नाम किसी भी केस में आया है रिलेटेड विद सुशांत सिंह राजपूत. नहीं आया. तो जो जिसका नाम नहीं आया है वो कंट्रोवर्सी में नहीं आया है. जिसमें वही वेरी स्पेसिफिक, जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में विथ इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटीज, इन टर्म्स ऑफ सम फैक्ट्स आया है, उनमें से कोई भी या जिनको लेकर पब्लिक ने चिल्लाया है उनमें से आज या कल, देर या सबेर, वो शख्स कंट्रोवर्सी में आ गया. अमिताभ बच्चन, who is considered to be the god of the industry, once considered the god of the industry, is being questioned by enforcement directorate for money laundering, or for that matter tax evasion and foreign exchange rules violation. ये तो माना ही नहीं जा सकता. अमिताभ बच्चन का तो कहना है कि चीजें बिल्कुल फेयर होनी चाहिए. उनके जाके ट्वीट्स देख लीजिए, वो तो सिंबल है ना ऑफ ऑल द करेक्ट थिंग. तो फिर अगर इफ यू आर सिंबल ऑफ ऑल द करेक्ट थिंग, फिर ये समन ऐश्वर्या राय को क्यों किया गया? आज ऐश्वर्या राय क्यों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गई थी? टैक्स एविजन का केस है और फॉरेन एक्सचेंज रूल्स वायलेशन का केस है. तो अमिताभ बच्चन हैज टू फर्स्ट सेट हिज हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट एंड देन प्रीच अदर्स व्हाट द अदर्स शुड बी डूइंग. इट्स वेरी इजी टू प्रीच, बट अपने घर को पहले सुधारिए, खुद के घर को ऑर्डर में लाइए, फिर दूसरों को बताइए. आप पूरे दुनिया को समझाते हैं कि कोविड में ये करना चाहिए, सफाई के लिए वो करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए. तो फिर क्या इतना नहीं मालूम कि टैक्स पूरा पे करना चाहिए? क्या फॉरेन एक्सचेंज रूल्स को वायलेट नहीं करना चाहिए? हम नहीं जानते कि उन्होंने किया कि नहीं किया, बट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन्स तो किया, ये तो फैक्ट है. तो फिर अगर कहीं गलती हुई है तो फिर वो गलती नहीं होनी चाहिए थी, तो इनको भी मालूम है. तो फिर कहां के महानायक लोग कैसे नहीं सवाल पूछेंगे? आज वो भी कंट्रोवर्सी में. So, sir, actually now I think all the public who's been in this movement for nearly, more than a year and a half should now understand what is happening. Now the picture is becoming clearer and clearer in its own way. Why did Bollywood not stand up for Sushant Singh Rajput? The answer is right in front of you. क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा जो stand कर सके, because their own background is so corrupted. Why do you think they have kept quiet? It's very clear now. It's becoming clearer and clearer as time is passing by. हाँ, मतलब जिनके घर शीशे के बने होते हैं दूसरे घर पत्थर नहीं उठाते. हाँ, तो तभी तो बॉलीवुड पूरा क्वाइट था ना सर. इट्स बिकमिंग क्लियर व्हाई. अब इतनी पिक्चरें आपने, इतने लोगों की पिक्चरें लगा रखी हैं फ्रेम में, तो यू कैन वेल इमेजिन. तो बचा कौन है? कौन जो क्लियर है वो ही बोल सकता है. जैसे अभिषेक कपूर हैज बीन स्टैंडिंग फॉर सुशांत सिंह राजपूत, शेखर कपूर हैज बीन स्टैंडिंग फॉर सुशांत सिंह राजपूत. ये लोगों जिन्होंने वॉइस करी है सुशांत सिंह राजपूत के लिए ऑन एंड ऑन. अभी चंद इंटरव्यूज में भी अभिषेक कपूर ने बोला है कि सुशांत वाज हैविंग अ वेरी टफ टाइम इन द इंडस्ट्री. ही इज स्पीकिंग. Why everybody else? सुशांत सिंह राजपूत के साथ कितनी एक्ट्रेसेस ने फर्स्ट टाइम काम करा है पिक्चर में उसके साथ. He has helped all of them. He was not scared to work with new actresses. None of them have actually spoken about him. No, none of them. Except for Sara Ali Khan. But नए एक्टर्स को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए भी देता हूँ. मैंने I always give that, क्योंकि जो नया है ना वो पांव जमाना चाहते हैं. वो कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे तो उनका कैरियर खत्म हो जाए. ये लोग रहने नहीं देंगे इंडस्ट्री में. आप समझो इस इंडस्ट्री के जो गेटकीपर्स हैं, सो कॉल्ड गेटकीपर्स, वो इनको एक भी दिन रहने नहीं देंगे. तो नए एक्टर्स के साथ उनके पास तो इधर गए तो खाई, उधर गए तो कुआं. सर, आई एम नॉट
मरता क्या ना करता, वो बोलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। नो सर, मेरे को किस चीज से इशू है, मेरे को इस चीज से इशू है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आस्क फॉर सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत, नो आई एम नॉट इवन सेइंग दैट. What I'm saying is that he was your colleague, he worked with you, at least speak some good things for him. आप interviews में नाम ही नहीं लेते हो. Okay, but my point is I have a different perception about it. मुझे लगता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो आप इंडस्ट्री के एल्डर से पहले शुरू करो ना, आप नीचे से क्यों शुरू कर रहे हो? आप नए वालों के से पूछ रहे हो सवाल, आप पहले उनसे पूछो ना जिन पर कोई प्रेशर काम नहीं करता है। अमिताभ बच्चन के को किस प्रेशर की सर आपको लगता है अमिताभ बच्चन पे कोई प्रेशर नहीं था? He had totally gone bankrupt. I understand one thing very clearly. 80-year-old man will have much lesser pressure than a 18-year-old kid. एक ही 18-year-old एक्ट्रेस से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आकर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अच्छा बोले, उसको सपोर्ट करे? किया है, बहुत सारे लोगों ने फिर भी हिम्मत करके किया है, चाहे वो कृति सैनन हो या कोई और. एटलीस्ट शी हैज स्पोकन अप, शी इज सेइंग दैट ही द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, यू विल नॉट फाइंड. बट हर शख्स से आप ये उम्मीद करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि दे आर यंग, दे हैव टू सेटल डाउन. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अमिताभ बच्चन? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद शाहरुख खान? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद आमिर खान? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार? इन लोगों के साथ क्या दिक्कत है? ये लोग जिंदगी जी चुके हैं इंडस्ट्री में, Yes. इनको कोई नहीं हिला सकता है. तो फिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं? अगर ये खड़े होते ना मैनी, तो बाकी अपने आप कतार खड़ी हो जाती. सर ये क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? ये आपको जवाब मिल रहा है ना. ऐश्वर्या राय ईडी चक्कर मार रही है, कोई और ईडी चक्कर, जैकलिन फर्नांडिस ईडी चक्कर मार रही है, आपको जवाब नहीं मिल रहा कि क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं ये लोग? क्योंकि उनका घर ही, उन्होंने खुद इतना ज्यादा इन्वॉल्व हैं. आई डोंट नो व्हाट ईयर इट वाज, देयर आर पिक्चर्स ऑफ अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, ये देवू इब्राहिम के साथ उनकी फोटोग्राफ्स हैं, हैंडशेक कर रहे हैं उनके साथ. करेक्ट. सो अगर आप क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा दामन साफ नहीं है, इसलिए आप चुप बैठे हुए हो. एग्जैक्टली. तो द क्वेश्चन इज करेक्ट, योर क्वेश्चन इज पॉइंट इज वैलिड, माय पॉइंट इज ये सवाल इन बड़े एक्टर्स से पहले पूछो, क्योंकि यही तो इंडस्ट्री को चला रहे हैं ना, गेटकीपर्स तो यही है. तो पहले इनसे सवाल पूछो, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों बच्चों के पीछे पड़े हम लोग? बच्चों को की जान ले लोगे, उससे क्या मिलने वाला है? वो इंडस्ट्री चलाते क्या? नहीं चलाते. इंडस्ट्री तो ये लोग चलाते हैं. तो जो गार्जियन है उनका दामन अगर साफ होता तो फिर नया जनरेशन भी साफ ही होता ना. तो सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होता आज. यस, सुशांत सिंह राजपूत जिंदा इसलिए नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री ने उसको जीने नहीं दिया. यस आई एग्री विद दैट. तो आप क्यों सफोकेट कर रहे हो? इतने सारे लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्री उनके बारे में केयर ही नहीं कर रही. इंडस्ट्री सिर्फ अपना पैसा सोच रही है, अपना बेनिफिट. ये जया बच्चन का एग्जांपल लीजिए. जया बच्चन इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, रिप्रेजेंट्स समाजवादी पार्टी इन राज्यसभा. आपको किस कोटा से एमपी बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के कोटा से, जो कि पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आपको इलेक्ट किया गया. आपको नॉमिनेट नहीं किया गया. आप बॉलीवुड को नहीं रिप्रेजेंट करते हो राज्यसभा में, लेकिन आप जब खड़े होते हो, आप पब्लिक परसेप्शन से दूर बॉलीवुड और अपने फैमिली के बारे में बात करते हो. आज आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो. उस दिन आप बोल रहे थे थाली में छेद है, आपने बॉलीवुड के बारे में तो बोला, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला. पब्लिक, चलिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं बोला, मान लेते हैं एक मिनट, है ना, लेकिन आप तो पब्लिक फिगर हो, आपको तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो. तो जब पब्लिक चिल्ला रही थी करोड़ों में, देश में और बाहर भी, तो क्या वो आवाज भी सुनाई नहीं दी थी? तो पब्लिक के फेवर में ही बोल देते, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो ना. आप बोलते हो कि इस गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज गलत है. चलिए एक मिनट के लिए मान लिया सारी पॉलिसीज गलत हैं, ये गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग दिस कंट्री टू डॉग्स, एवरीथिंग आई विल एक्सेप्ट. बट माय पॉइंट इज कि जो पब्लिक बोल रही है उसके साथ नहीं जाकर आप क्या कर रहे हो? आप ऑपोजिशन में होकर भी पब्लिक के साथ नहीं जा रहे हो. कम से कम ये गवर्नमेंट ने 4 एजेंसी तो ठोक दिया ना. अगर ना 4 एजेंसी को लगाया होता गवर्नमेंट ने, ना इतने सारे लोगों की क्वेश्चन होती जिनकी 25 के बारे में बात कर रहे हैं. कम से कम इस गवर्नमेंट ने उन एजेंसीज को तो लगाया. अगर आप लोग जो ऑपोजिशन में बैठे वो ज्यादा हल्ला करते तो और जल्दी हो जाता. मैंने Yes, I totally agree with you. And I also feel that if you are getting frustrated on issues that is only related with your industry, then there is an issue. There is an issue. That means the industry is feeling threatened. As it is, मैंने सर बहुत लोगों से पूछा है, आप ये सूर्यवंशी ना सब बेकार की PR करी है. The movie has not earned so much money.
इट इज फॉर श्योर इतनी जल्दी वो OTT प्लेटफॉर्म पे भी आ गई है. ये सब PR स्ट्रेटेजी है. इंडस्ट्री इज नॉट एबल टू गेट द ऑडियंस इन सिनेमा हॉल्स. तो that will be very difficult. The reason for that is अगर इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी, कभी इनको बुलाया जाएगा, कभी उनको बुलाया जाएगा, कभी इसको समन किया जाएगा, कभी उसको समन किया जाएगा. एक और नया ट्रेंड शुरू हुआ है. इंडस्ट्री के एक्टर्स और पर्सनालिटीज को लगता है ना कि जैसे वो ममता बनर्जी बोलती है ना, वो बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगी. ये इंडस्ट्री के लोगों ने भी डिसाइड कर लिया. एनसीबी बुलाएगी नहीं जाएंगे. अनन्या पांडे नहीं गई तीसरी बार. So who started it? Who has started this trend? What? किस को बुलाया और किसने ये ट्रेंड स्टार्ट किया? किसने किया बताइए? अनन्या पांडे ने ट्रेंड स्टार्ट किया ना. ये उसको Exactly. बुलाया गया एंड शी डिडंट. मैं कह रहा हूं अनन्या पांडे नहीं गई तो एनसीबी चुप रही. क्यों? क्योंकि एनसीबी के जो ऑपरेशन चला रहे थे उनको पॉलिटिकली आपने हिट कर दिया. अब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बाकायदा बताया कि आप सब झूठ बोल रहे थे. अगर झूठ के कारोबार करके आप एक ऑफिसर को रोक सकते हो तो इस देश में फिर काम होगा कैसे? अगर पब्लिक नहीं खड़ी होती समीर वानखेड़े के फेवर में तो उसको कब का टांग दिया गया होता. यहाँ तो ना पब्लिक की सुन रहे हो आप, ना आप ऑफिसर्स की सुन रहे हो, ना आप सिस्टम की सुन रहे हो, पता नहीं किसकी सुन रहे हो. सर उन्होंने देखो इट्स अ नेक्सस ना सर. अब तो क्लियर होता जा रहा है ना. जो हमने सुशांत सिंह राजपूत के व्हेन आफ्टर 14 जून, whether it was speculations, whether they were rumors, whatever they were, we had heard there is police involved. With police there are politicians involved. With politicians there's Bollywood involved. ये तीनों आपस में मिल रखे हैं. बॉम्बे में कोई भी काम करना चाहता है, they are catching these people only. They play this nexus. Politicians पुलिस को काम नहीं करने देती है, बॉलीवुड पॉलिटिशियंस को काम नहीं करने देती है, क्योंकि सबने एक दूसरे को खाना खिलाया हुआ है. एक तरफ ईडी ने, मैंने 25 कम से कम 25 नाम आज गिना है. 25 लोगों को अलग अलग एजेंसीज ने, मुंबई पुलिस से लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक, इन लोगों ने अलग अलग टाइम में क्वेश्चन किया. करेक्ट. अब लॉजिकली जितने एडवर्टाइजर्स हैं, जितने मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनको ये पता होना चाहिए और उनको ये अंदाजा लग रहा होगा कि ये परसेप्शन नेगेटिव हो रही है. लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखो तो ग्राउंड रियलिटी में लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ा. क्यों? आज भी उन्हीं को एड्स मिल रहे हैं. ये समझ में नहीं आ रही है मुझे बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो लोग एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, जिनका सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, वो ऐसे लोगों को क्यों एड में लाएंगे जिनका पब्लिक परसेप्शन नेगेटिव है. लेकिन ऐसा ही हो रहा है. शाहरुख खान को एड मिल रहा है, सलमान खान को ही ऐड मिल रहा है, अब दीपिका पादुकोण को ही ऐड मिल रहा है, रणवीर सिंह को ही ऐड मिल रहा है. उन सारे लोगों को मिल रहा है ऐड जिनको पहले से मिलता रहा है. नए किसी को नहीं मिल रहा है, ना कोई बाहर से. जो कह ट्रू हीरोज, रियल हीरोज, कौन सा रियल हीरोज? कहाँ है रियल हीरोज? यही हीरो को भी प्रमोट किए चले जा रहे हैं. So, सर ऐसे हो सकता है ना कि इन्होंने, एडवर्टाइजमेंट वालों ने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया था तो पेमेंट दे दी होगी ना उनको सारी. हर कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में टर्मिनेट कर दिया जाता है. अगर पब्लिक नहीं देखने, देखिए बिकता वही है जो दिखता है. अगर पब्लिक नहीं देखेगी तो लोग, कोई बिजनेसमैन ये रिस्क नहीं लेगा. मुझे ताज्जुब इस बात पे हो रहा है कि पब्लिक परसेप्शन श्योरली, कोई बोल देगा, मैं मानने को तैयार नहीं हूं, श्योरली टर्निंग नेगेटिव. बट उसके बावजूद भी इन लोगों को एड्स मिल रहा है. ये कॉन्ट्राडिक्शन, क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन. ये कॉन्ट्राडिक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा. सर मेरे को तो यही लगता है शायद वो एडवर्टाइजमेंट वालों को पैसे दे रहे हैं उनको एड में डालने के लिए. इट्स पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. हो सकता है नहीं, पैसे तो नहीं दे रहे होंगे, मतलब फ्री में कम चार्ज कर रहे होंगे, ये हो सकता है. और या फ्री में कर रहे होंगे. यस, और फ्री में ही कर रहे होंगे, फ्री में भी कर सकते. जो लोग ओटीटी पे कदम नहीं रखना चाहते थे, आज बोल रहे हैं ओटीटी हैज मेड सच अ बिग डिफरेंस. कल तक सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म बोल, नहीं तुम्हारी फिल्म तो ओटीटी पे ही रिलीज करो. नहीं, थिएट्रिकल रिलीज हो ही नहीं सकती. थिएट्रिकल रिलीज तो बड़ी फिल्मों की होगी. उसकी फिल्म करा दी ओटीटी पे रिलीज, ड्राइव. नतीजा क्या हुआ? आज सारी फिल्म ओटीटी पे रिलीज हो रही है. चलो एक को रिलीज कराया, अब सब रिलीज हो रही है ओटीटी पे. If this is not poetic justice, what is poetic justice? And Sushant Singh Rajput. Okay, so let's even talk even further. Dil Bechara of Sushant Singh Rajput is the most watched movie on OTT platform. नहीं, दिल बेचारा का एग्जांपल मैं नहीं ले रहा हूँ. उसका एक रीजन है, उसमें इमोशनल कनेक्ट. नहीं, जो भी है. हाँ. No other picture which has come on OTT has not done that kind of. That's because there was an emotional connect. So उसको आप एक कंपेयर मत करो. सुशांत सिंह राजपूत का कुछ भी आएगा ना तो पब्लिक पागल होके देखेगी. Yes.
आप समझो इस बात को, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। मैं सुशांत सिंह राजपूत को पोस्ट 1420 नहीं बात कर रहा, मैं प्री 1420 बात। Yes, yes, I understand. प्री 1420 आपने एक फिल्म उसकी रिलीज की, जबरदस्त थी। Yes. उसके बार बार कहने के बावजूद कि मत रिलीज करो ओटीटी पे, मैं खत्म हो जाऊंगा, आपने उसको रिलीज किया, करेक्ट? आज क्या हुआ? आपने उसको खत्म करने के लिए ओटीटी पे रिलीज किया ना, आज उसने सारी फिल्में ओटीटी पे रिलीज करा दी। Yes. आपको जो करना है कर लो। बिल्कुल। And sir, Bollywood's future is in big trouble. These people want to keep postponing their releases. कोई देखेगा नहीं इनकी पिक्चरें, स्पेशली ये जो 5-6 जो जाने हैं, इनकी कोई पिक्चरें नहीं देखने वाला। ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा था कि ओटीटी पे यानी इन प्लेटफॉर्म से फिल्म को आने में कम से कम 6 महीने लगते थे, तब जाके आप नई फिल्में देखते। आज तो तीसरे दिन आ रही हैं। दैट मीन्स इनकी फिल्मों के पैसे वहां से मिल नहीं पा रहे, नहीं मिल रहे हैं। देखो, दो तीन चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ तो ये बात समझ में आ रही है कि जो मनी इनकी थिएटर से आ रही थी वो नहीं आ रही, दैट्स व्हाई दे आर फोर्स्ड टू रिलीज इट ऑन ओटीटी। वहां पे जो एड्स मिलते हैं ओटीटी में, उसके थ्रू ये कमा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एड्स इन लोगों को क्यों मिल रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। सर मैं तो पब्लिक परसेप्शन नेगेटिव है, फिर भी एड्स इन्हीं को मिले जा रहा है। सो मैं तो बहुत सिंपल थिंकिंग करती हूँ, मैं ज्यादा इतना लॉजिक लगाती नहीं हूँ। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मेरे को तो बहुत क्लियर है ये डिस्काउंट दे रहे हैं या फ्री में एड्स कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू स्टिल कंटिन्यू बीइंग सीन बाय द पब्लिक। उनको पता है पब्लिक बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है। रेट गिरा के या अपनी तरफ से फ्री में करके किसी तरह से हमको दिखाते रहो। सर आप कोई भी एक्टर से पूछ लो, वो उनको किस चीज से डर है? उनको यही चीज से डर है कि या 1 या 2 या 3 साल अगर पब्लिक उनको देखेगी नहीं तो पब्लिक उनको भूल जाएगी। They don't want to be forgotten. They want to be seen. If public is not going to cinema halls, they want to keep showing their faces through advertisements. So basically, somehow yes, they want to be there in strategy. Public glare. Yes, so that they don't forget them. Just stay on, Manny. Let me go to Payal first, and then I'll come to you. Rejoy is also there. Yes, Payal, please go ahead. Payal, 1 minute. Payal, 1 second. हाँ Payal, बोलिए। हाँ, या वेलकम बैक सर स्पीकअप में। तो सर ये जो आज का आपका टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि बॉलीवुड एंड सुशांत सिंह राजपूत, ये बहुत ही कनेक्टिव टॉपिक है क्योंकि सुशांत तो बॉलीवुड से ही रिलेटेड थे ना, हम लोग तो जानते थे उसे बॉलीवुड से ही। तो जिन जिन लोगों ने उसके पीछे लगे थे, उसको आगे नहीं बढ़ने दिए थे, उसके लाइफ में बहुत तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आज अगर देखा जाए वो हर किसी के लाइफ में अब प्रॉब्लम हो रहा है थ्रू पब्लिक एंड थ्रू एजेंसीज। तो ये पोएटिक जस्टिस तो एक तरफ से है ही, लेकिन एक ऊपर वाले की भी है ना कि जो करते हैं कर्मा, जो हम कर्म करेंगे उसी तरह से ही हमें फल मिलेगा। तो सुशांत जाने के बाद भी, हाँ हम बोल सकते हैं कि वो जल्दी चला गया है, लेकिन जाने के बाद भी वो याद है हर किसी के दिल में, और वो तो एक अलग बात है। और जब जो तकलीफदायी बात ये होता है कि जो जिंदा होता है, जब कोई उनसे नफरत करते हैं ना तो प्रॉब्लम ज्यादा होता है। जो चले जाते हैं उनको तो पता नहीं चलता है ना हम लोग प्यार कर रहे हैं या नफरत कर रहे हैं, लेकिन जो बचे रहते हैं, जो जिंदा रहते हैं, उनको अगर देखा जाए कि हमें सब नफरत कर रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं, जो इतने दिन से प्यार देते थे, सर पे चढ़ा कर पता नहीं क्या क्या करते थे, वो लोग जब नहीं देखते हैं कि इस तरह से हमें कोई हेट कर रहा है, तो वो ज्यादा इरिटेटिंग होता है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ये ही है बॉलीवुड का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन, जो जया बच्चन जी के मतलब वो संसद में जाकर भी इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनके फ्रस्ट्रेशन इस तरह से नहीं है कि वो वहां पर जाके क्या टॉपिक ले रहे हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन है कि उनकी सन इन लॉ को ऐसे क्यों, डॉटर इन लॉ को ऐसे क्यों मतलब बुलाया जा रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता क्यों नहीं बुलाया जा सकता है? नहीं, क्यों बुलाएंगे? रेड कारपेट बिछाएंगे आपके लिए? नहीं, उन लोगों तो ये सब, उन लोगों का कभी सोचे नहीं होंगे ना कि ऐसा कुछ हो सकता है। स्पेशल बने ना, पैसे वाले लोग हैं ना, ये लोग बड़े लोग हैं, और वो लोग सोचते थे कि हम लोग स्पेस में रहते हैं, जो हम लोगों को छू नहीं सकता है, हम लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बॉलीवुड इंडस्ट्री इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पब्लिक से अलग होकर वो चल रहे हैं। मिनरल वाटर, वी आर रेगुलर वाटर। या और मुझे लगता है कि बॉलीवुड से ज्यादा करप्ट प्लेस शायद ही कोई जगह है। पॉलिटिशियन से भी ज्यादा करप्टेड शायद बॉलीवुड है, क्योंकि पॉलिटिशियन तो कुछ हद तक कहीं हम लोग के लिए रोड भी बना देते हैं,
कहीं हम लोगों के लिए पानी भी दे देते हैं, कहीं पर कुछ काम भी कर देते हैं इलेक्शन से पहले। लेकिन ये लोग करते क्या है, कोई भी काम करते हैं, 10 रुपए का काम करते हैं तो 1000 रुपए दिखाते हैं, 100 रुपए का काम करते हैं तो 2 लाख दिखाते हैं। तो मतलब इन लोगों का, और जितने भी नेगेटिव चीज है आज तक की, सारे के सारे बॉलीवुड में होते हैं। तो मतलब करप्शन, बॉलीवुड, नेगेटिविटी, ये सब लिंक है। और इतने साल से ये हो रहा है तो सबको पता है, लेकिन फ्लैश आउट इस तरह से नहीं हुआ है। इसलिए बॉलीवुड पूरा बौखला गया है। वो सोच रहे हैं कि हम लोग इतने साल से तो कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे कभी कोई कुछ बोला नहीं है। लेकिन सुशांत जाने के बाद इस तरह से पब्लिक फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि पब्लिक बोलना शुरू कर दिए हैं कि हमें नेगेटिव चीजें नहीं चाहिए, पॉजिटिव चीजें चाहिए, जो इतने साल से पब्लिक नहीं बोले हैं। क्योंकि आज आपने जितने सारे पिक्चर्स लगाए हैं, मैं तो जैसे स्टंट हो गई कि इतने सारे लोगों को हम लोग इतने साल देखते रहे हैं, आज सब आपके स्क्रीन पे है एज ए करप्ट पीपल। किसी ने, किसी को ईडी ने बुलाया है, किसी को एनसीबी ने बुलाया है, किसी ने कुछ किया है, किसी तो कुछ नहीं किया है। मतलब ये लोग आम पब्लिक से हट कर हैं, लेकिन ओरिजिनल अगर देखा जाए तो दे आर टोटली करप्ट पीपल। इन लोगों का अगर टाइटल दिया जाए, ये लोग सिर्फ अपने आप को किंग और क्वीन समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो लोग कुछ नहीं है। मुझे तो यही लगता है, और ये हम लोगों की गलती है, पूरी तरह से पब्लिक की गलती है कि हम लोग उन लोगों को प्लेटफॉर्म दिए हैं। हम लोग उन लोगों को इस तरह से देख कर मतलब 100-200 करोड़ के बजट बनाकर इसे इस तरह से मूवी को हिट किए हैं बॉक्स ऑफिस को। हम लोग अपनी पैसे को इन लोगों के ऊपर बर्बाद किए इतने साल से। ये लोग मतलब पनामे में जाकर अपने अकाउंट में पैसे मूवी कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन का लास्ट मूवी कौन सा है मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन उनके पास इतना पैसा है कि वो जाकर वहां बैंक में पैसे डाल रहे हैं। तो मतलब इनके पास पैसे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, दिखा रहे हैं कि पैसे नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। और जो ये आप बोल रहे हैं ना कि ये लोगों का ऐड है रहे हैं, मुझे तो लगता है जैसे वो लोग बॉलीवुड के गेटकीपर है, शायद ये एड एजेंसीज का भी गेटकीपर यही लोग है। ये लोग बोल दिए हम लोगों को लोगे तो हम लोग मतलब चलाने देंगे, नहीं तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे देखिए हम लोग तुम लोगों को ऐड ही नहीं चला देंगे। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जो बोल रहे हो ना पायल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो मतलब ये लोग तो हर जगह ही अपना सिक्का जमाने की कोशिश करते हैं ना। तो लेकिन कि इतने दिन से बोलने के बावजूद भी हर जगह पर रणवीर सिंह, वो अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, हम लोग क्यों देखना चाहे, हम लोग को नहीं देखना है। तो हम लोग किसको अपील करें, किसको जाके बोले कि बंद कीजिए ये लोग जैसे कि हम लोग अब बॉलीवुड को नहीं देखना चाह रहे तो कि बॉलीवुड मूवी बंद कीजिए। वो लोग तो मूवी भी कर रहे हैं और ओटीटी पे रिलीज भी कर रहे हैं, उस तरह से ये लोग ऐड भी कर रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं। तो मतलब वो अपने आप काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग दिखाएं, हम लोग देखें या ना देखें, वो लोग अपना तो चलाने की कोशिश अपने हिसाब से अपने रास्ते पे चल रहे हैं। तो अब ये हम लोगों की अब आगे देखना है कि कितने दिन तक वो लोग ये इस लड़ाई चलता है, पब्लिक वर्सेस बॉलीवुड। ये तो पूरी तरह से पब्लिक वर्सेस बॉलीवुड है ना। यस सर, I'll give you, connect you again, one second. Yeah, Pramod, okay. Pramod, please go ahead. Sir, can you hear me? Yeah, please go ahead, Pramod. Yeah, sir, I think she was right on one thing. It's all about economics. Paisa ki, yes, I agree. it's all about money, yes. And they are losing out on it. They were banking on it pro-COVID. But after COVID जो भी हुआ है, वहां पे ये लोग बहुत प्रमोद, ये जो परसेप्शन का लॉस हुआ है, प्रमोद परसेप्शन का जो लॉस हुआ है वो इन कंट्रोवर्सीज के कारण हुआ है या सुशांत सिंह राजपूत? नहीं सर, I seriously have to say, कैंपेन के कारण हुआ है। नहीं सर, I'm a businessman. I will give my opinion based on that only. क्योंकि आप देखिए तो बॉलीवुड का जो भी कंज्यूमर्स है उनका परसेंटेज देखिए तो आप ऑल ओवर इंडिया, आई एम टेलिंग, नॉट जस्ट महाराष्ट्र और हिंदी बेल्ट, आई एम जस्ट टेलिंग ऑल ओवर इंडिया, it's not even, I don't think it's that much. I mean, in fact, if it was one language all over India, we would have made 10,000 crores on a movie like Bahubali or something like that.
So it's No, not no, like that, right? you have to So, understand. There is a movie called Pushpa. अभी पुष्पा आई है. पुष्पा Pushpa ही is है. purely South Indian film, but it has the dubbed version has come and that is a big hit in North Allu India. Arjun, yes, I Every know. public are rejecting Bollywood actors and are accepting South Indian actors. Yes, sir. That's what I'm telling. The thing is, people are started accepting content more than the stars. No, maybe no. It could be other way around also. It could also be प्रमोद कि लोगों का जो एंगर है ना बॉलीवुड की तरफ वो उनको देखना ही नहीं चाहते. उनके लिए प्रभास भी हीरो है, उनके लिए दूसरे भी हीरो हैं, उनको फिल्म देखना है, वो किसी और का देखने को तैयार है, इनकी फिल्म नहीं देखेंगे. नहीं सर, आप नेटफ्लिक्स में जाके देखिए. If you see Wheel of Time, not Netflix, sorry, Amazon Prime, Wheel of Time, Okay. it's got more views than Pushpa in ticket-wise based also in India. हाँ वो तो होगा ना प्रमोद. ओटीटी को आप कंपेयर मत कीजिए. मैं मूवी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को थिएट्रिकल रिलीज को थिएट्रिकल रिलीज से कंपेयर कर. तो एक थिएट्रिकल रिलीज बॉलीवुड की जो हो रही है कंपेयर टू पुष्पा व्हिच कम्स फ्रॉम अ साउथ इंडिया उसकी बहुत ज्यादा हो रही है. Pushpa's released in Maharashtra also. हाँ no इट्स रिलीज इन दिल्ली आल्सो, इट्स रिलीज इन यूपी आल्सो. Oh, okay, sorry, I didn't know that. I'm It's a sorry. dubbed version which is released and making huge money here. वो Really? Spider-Man is the biggest hit. Spider-Man, Pushpa are the big hit. जो बाकी फिल्मों को बताना पड़ रहा है कि भाई हमने इतना कमा लिया, हमने इतना कमा लिया. बॉलीवुड के लोगों को बोलना पड़ रहा है. इनको बोलना नहीं पड़ रहा है. They are earning. They are actually earning. नहीं, वो I think it started with Sushant's, injustice. I will say injustice in the least possible way. Correct. So, I mean, वो तो है, but ये content भी कुछ भी नहीं है, sir. I just have to say that. I agree with I you. mean, unfortunately, I have to say that. South India film better content produce कर. क्योंकि मैं जब I learned Hindi because of watching Hindi movies, by the way. अच्छा. Because I'm from Bangalore, I was born in Coimbatore in Tamil Nadu, so I know Tamil and Kannada. But I learned Hindi only by watching. My first movie was Satte Pe Satta, which I watched on VCR. सत्ते पे सत्ता. Yeah. सत्ते पे Oh. सत्ते पे सत्ता is something else. तो देखिए वो अभी भी मेरा pronunciation गलत है. So you can understand. You can understand, right? I mean, Yeah, Pramod, please go ahead. I mean, but वो enthusiasm वहीं से आया ना, because it was nice movie and it was nice songs and everything, whatever. And then बाद में I started watching all the other movies and I learned something. I mean, that's how curiosity starts. But what do we learn now? Nothing, right? But half the things are in English. Respect has gone down, but respect has gone down after Sushant Singh Rajput's death. That's what I feel. Yeah, that is true, sir. That is true. That is absolutely. Till then, अगर अमिताभ बच्चन को छींक भी आ जाए ना, तो पब्लिक पागल हो जाती. नहीं सर, वो अमिताभ बच्चन को भी मैं छोड़ दूंगा सर. No one was interested to know. न सर, मैं अमिताभ बच्चन को भी छोड़ दूंगा, बट उनके मालकिन को मैं नहीं छोड़ सकता. सॉरी, वो बहुत छेद कर रहे हैं मेरा जिंदगी में, मैं नहीं छोड़ सकता उनको. ये बहुत हो गया है उनका. Sir, if I don't pay 100 rupees tax extra, they'll call me. If somebody is called ED, if they have not done anything wrong, please go and say, I have not done anything wrong. No issues, no issues. Call me anytime you want. Do that now. Instead of that, just don't go and say, oh, ye wo hai, ye bahut ye hai, and don't make a bloody Bollywood out of that in Rajya Sabha also. Come on. आप गुड्डी बन के घर में रहो, बस मैं वही बोलना था. और कुछ नहीं. क्या पायल? प्रमोद गुस्से में है. सर मैं गुस्से में नहीं हूँ. मैं नहीं प्रमोद जी, यू आर जस्ट एब्सोल्युटली ग्रेट, बैंग ऑन. आपने जो कहा पहले तो वो सत्य में सत्ता वो भी ग्रेट था आपका,
मतलब इतने में भी आप बहुत अच्छे, और आपने जो जया जी के बारे में बोले हैं, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, इतने ज्यादा कि छेद कर रहे हैं, थाली कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। अरे जिस मतलब वो लोग क्या टैक्स असली में पे कर रहे हैं, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, नहीं, हम एक्चुअली लोग टैक्स दिखा रहे हैं। मैं बताता हूँ पायल, जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, जो लोग फॉरेन एक्सचेंज रूल नहीं मानते हैं, वो इस देश की थाली में छेद कर रहे हैं एक्चुअली। आपको हाँ, छेद समझ में नहीं डेफिनेटली। आता तो पहले इस देश की थाली में छेद करना बंद कीजिए। आप बॉलीवुड के थाली में छेद करना बहुत दूर की बात है, पहले इस देश की थाली में छेद करना बंद कीजिए। आप लोग टैक्स नहीं दे रहे हो और गरीब आदमी को 50 रुपए का अगर टैक्स नहीं देगा तो उसको जेल में डाल दोगे। और आप लोग वही तो। स्पेशल कैटेगरी हो तो आपको रिलीफ भी मिलेगा, आपको छूट भी मिलेगा, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगा, आपको पद्मा अवार्ड भी इतना कुछ। मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ गरीब आदमी पूरी जिंदगी बिता देता है, उसको पद्मा अवार्ड नहीं मिलता है। आपको क्यों मिलता है भाई? एक गरीब आदमी जो गांव में किसान काम करता है उसको भी पद्मा अवार्ड मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो 18 घंटे रोज काम कर रहा है, 80 साल की उम्र में मरते तक काम कर रहा है, लेकिन उसको तो कोई पद्मा के लिए नहीं पूछता है। इनको पद्मा अवार्ड दे दो, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दो, इनको ज्यादा साहब फाल्के अवार्ड दे दो। काहे के लिए दे दो भाई? किस लिए दे दो? फॉर व्हाट? फॉर तो नथिंग सर। मतलब ये लोग, सर ये लोग कमा रहे हैं अरबों करोड़ों में और टैक्स भी नहीं देते हैं, और इतने बड़े, और हम लोग अगर कुछ गलत काम करते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कि अरे तो बाप रे, अगर कुछ गलत हो गया है। राजकुंद्रा ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मेरे अगेंस्ट में विच हंटिंग किया जा रहा है, मेरे हाँ, फंडामेंटल राइट्स को मतलब मारा जा रहा है। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका फंडामेंटल राइट कौन है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? वो लड़कियां जो कह रही है कि वीडियो बनाया गया वो झूठ बोल रही हैं या राजकुंद्रा झूठ बोल रहे हैं? राजकुंद्रा सही है तो वो लोग झूठ है, और राजकुंद्रा का हाँ। राइट जा रहा है तो उन लड़कियों का राइट्स क्या है? लेकिन सर ये लोग तो मतलब हर हद को पार कर चुके हैं। मतलब नेगेटिव काम के लिए हर हद को पार, मतलब पैसे इस तरह से बॉलीवुड में, मतलब एट एनी कॉस्ट इन लोगों को पैसे, कितने जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? एक जिंदगी, एक इंसान को जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो हम लोग सब सब अगर ले जाएंगे ऊपर, तब समझते हैं कि इतना पैसा लेकर हम लोग चले जाएंगे, लेकिन लेके भी तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन इतना पैसा इधर डाल रहे हैं, इधर डाल रहे हैं, बाहर डाल रहे हैं, टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े डायलॉग दे रहे हैं। मतलब पैसा बोलता है, पता है, लेकिन इस यहाँ पे तो उछल उछल कर बोल रहे हैं। कहानी ना, ये कहानी पायल, प्रमोद, ये कहानी जो है ना, ये 4-5 लोगों के बीच नहीं है, ये पूरी कहानी सिस्टमैटिकली सेट हो गई है। क्योंकि तापसी पन्नू तो इज जस्ट अबाउट 5 years 6 years इन द इंडस्ट्री, और तापसी पन्नू भी टैक्स एविजन कर रही है। तो इसका मतलब एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन हो गया। करप्शन हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द इंडस्ट्री। यहाँ पे जो भी देख लेते हैं ना कि इस तरह से हम लोग बच सकते हैं, टैक्स से पैसे नहीं दे सकते हैं, इन लोग को जब पता चल जाता है कि असली फंडा क्या है, तो ये लोग स्टार्ट कर देते हैं कि बिना टैक्स पे करके कैसे कैसे ब्लैक मनी बना सकते हैं। इन लोगों को एक प्रोसीड्योर पता चल जाता है, जो प्रोसीड्योर बड़े जो हम लोग बोल रहे हैं बिग बी जैसे लोग सेट कर चुके हैं। नॉट ओनली बिग बी, मैं अमिताभ बच्चन की पर्टिकुलर किसी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी जो पुराने स्टार्स हैं वो लोग एक सेट कर चुके हैं कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज ये ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड में एक शेल कंपनी खोल के इतना सारा पैसा पार्क करने का क्या जरूरत है? इंडिया में बैंक कम है क्या? अगर सब कुछ फेयर है, वही तो हम बोल रहे हैं, पैसा जमा करो। यस तो मतलब वो लोग एक मिनट से हम लिंक कर जाएंगे, बस यही मुझे बोलना है कि इन लोगों के पास एक सेट कर चुके हैं कि इस तरह से हम कर सकते हैं, और जो न्यू एक्टर एक्ट्रेस आ रहे हैं वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और आगे इस तरह से करप्ट हो रहे हैं। मतलब बॉलीवुड इज इक्वल टू करप्शन इज टोटली। तो हम लोगों को अगर इसको, मुझे पता नहीं इस तरह से कितने साल और चलेंगे, और इस बॉलीवुड को इस तरह से कैसे, मतलब हम लोग कैसे झेलेंगे। तो अगर नीट एंड क्लीन इंडिया चाहिए तो पहले तो बॉलीवुड को स्वच्छ करो। अगर स्वच्छ करना ही है तो पहले बॉलीवुड को स्वच्छ करना चाहिए, बाकी बाद में अपने आप हो जाएगा। दैट्स ऑल्सो परफेक्ट। तो स्वच्छता अभियान बॉलीवुड में चलाने की जरूरत है, और वही तो चला रहे हैं। लेकिन राज्यसभा में अगर कोई सवाल उठ जाता है और कोई भी बोल देता है, अगर बीजेपी का कोई एमपी, चाहे रवि किशन हो जो इंडस्ट्री से आते हैं, या कंगना रनौत बोल देती है, तो पूरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। क्यों? अरे भाई, अपने घर के राज नहीं खोलते हैं। कीप द dark secrets inside the room. If you let the dark secrets go out, then there will be a Pandora's box opened. So ये Pandora's box खुल जाए, उससे डर रहे हैं। Yes, Pramod, go ahead.
Yeah, thank you, sir. My brother-in-law is from LSE, London School of Economics. So that was in 1998. He got out from there. He's an auditor and he's in New York right now. Oh, simple thing, sir. सबको मालूम है लूपहोल्स क्या है, कैसे निकलना है, क्या करना है, सबको मालूम है. My only issue is why are these people so scared right now when they ask a simple question? आपको इनके बारे में क्या मालूम है, इनके बारे में क्या मालूम है पूछा तो ये लोग हमारा आंटी जी गुड्डी जी बोलते हैं कि अरे ये वेंडेटा है, ये वेंडेटा है. अरे आंसर तो कीजिए. Just say no, nothing. There's no issues. This is somebody. Why does she get angry only on the day? Why does she get angry only on the day when her daughter-in-law is summoned? Exactly, that's what I'm telling. वही मैं बोल रहा हूँ. She could have just said that no, somebody told me, somebody advised me to invest in this company. I invested. That's all. हो गया. वो गलत है तो गलत है. उसका टैक्स भरना है तो मैं भरूंगा. वो बोलना चाहिए ना उनको. अगर वो टैक्स भरना होता तो It was legally everything was fine. वर्जिन आइलैंड में किसी शेल कंपनी के थ्रू क्लोज उस कंपनी को खोलो, उस कंपनी का पैसे डालो, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज करो, आप डायरेक्टर बन जाओ, डायरेक्टर का पोस्ट छोड़ दो, फिर शेयर होल्डर बन जाओ, उसके बाद कंपनी बंद कर दो. ओ वही. That's the thing ना सर. ये राज्यसभा में नहीं बोलते ना वो लोग. That is the only thing they know. आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए नहीं बनाया गया कि आपने फैमिली के गलत काम को सही जस्टिफाई कर देंगे, इसके लिए नहीं बनाया एमपी. सॉरी. But sir, one thing I have to say, she is the best sass ever of any bahu. That doesn't concern any of us, because end of the day आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फैमिली मैटर्स को डिस्कस करने के लिए नहीं मिला. No, she is a Rajya Sabha MP. She is not even an elected person. No, even if she is the Rajya Sabha MP, I'm saying अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कह भी दिया कि आप जो इतना क्वेश्चन उठा रहे हो लखीमपुर एमपी को लेकर, पहले आप अपने घर में देखो कि आपके घर में क्या हो रहा है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट. आपके डॉटर इन लॉ को समन हुआ क्यों? बट वो लखीमपुर का बेटा तो जेल में है ना अभी भी. उसका एग्जैक्टली द पॉइंट. सो उसका बेटा जेल में है और आप मंत्री पद उसको हटवाने में लगे हुए हो. करेक्ट. आपके डॉटर इन लॉ को समन कर दिया गया तो आप बोलिए मैं फिल्म नहीं करूंगी, अब फिल्म मेरे हस्बैंड नहीं करेंगे, वो बॉलीवुड छोड़ रहा है, बोलिए. No, when the thing is when see they are contradicting themselves at the same time. They are telling let the due process go on, court process go on. In Lakhimpur Kheri case. But according to their own process going on. Correct. उनके हिसाब से ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, बट दूसरों के हिसाब से ड्यू प्रोसेस नहीं होना चाहिए. ये कहां सा न्याय है? जब वो मिनिस्टर की बात आए तो इनके हिसाब से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए. जब इनकी बात हो तब भी इन्हीं के हिसाब से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए. तो जुडिशरी काय को बैठा है उधर? जुडिशरी को तो आराम से आइसलैंड या फिनलैंड जाना चाहिए नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए, आयशो आराम वोडका पीने के लिए. जब लेट देम गो. नो, व्हाई टू ब्लेम poor old judges, please. They are also old, no? They have studied so much in their lives. I agree. No, rules cannot be the way you want it to be. Rules have to be the same for all. So if you are seeking action against the minister because his son is involved, so people will obviously seek action against you because your daughter-in-law is involved. खत्म बात. नहीं सर, मेरा प्रॉब्लम यही है सर. प्लीज somebody solve my problem. इन सब के झगड़े में आप, मैं और मैडम जी, मानी जी, दुग्गल जी, we are all suffering. That is all. Okay, perfect. Yes, Manny, please go ahead. Just stay on, Pramod, just stay on. Yes, sir. Rinku is trying to connect for long, but Rinku is not able to connect. Sir, should I disconnect? So No. You just stay on. Your being there doesn't affect her connectivity. Yes, Manny, please go ahead. So, sir, what I want to say in the end is only this, that there is a limit
to how much these Bollywood actors want to have money. Their money is endless. They have so much money that even 10, 15, or even 20 generations can survive on that money. What are you? Why are you so greedy? You have so many investments, you have so many businesses that you are doing yourself, you have so much rental property. How much money is enough? And here I see on my right hand side a boy, a man of 34 years old. When he was 30 years old, in MS Dhoni interview also, he said, I wanted to, there was a dream car called Range Rover that I wanted to buy. And the day I bought it, the next day I felt that joy of buying Range Rover was over. And he said, that is the day I understood that money is not everything. Money can buy you things, but it cannot buy you happiness. It cannot teach you how to live your life. So for me, if I'm listening to interviews of Sushant Singh Rajput, and when I compare it to a Jaya Bachchan or a Amitabh Bachchan or a Karan Johar or Akshay Kumar, they have so much money, so much money. But because Sushant was not running after money, because he did not give so much value to Yes. money, because he did not do all the hanky pankies that's required to Yes. get money, because उसने सारी चीजें नहीं की जो बाकी लोग कर रहे थे, या उन्होंने वो नहीं सुना जो दूसरे लोग कह रहे थे, इसलिए सुशांत आज नहीं है और ये लोग रूल कर रहे हैं इंडस्ट्री को. सुशांत could not rule because he was not a player in the game that they are setting. एग्जैक्टली एंड सर मैं जब भी बात करती हूँ सुशांत की मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दिस इज अनदर रीजन फॉर मी टू बिलीव what the first week of rumors, speculations, or whatever came into the picture, all that is true. Because here is Sushant Singh Rajput who believed in his dreams. He was not after money. He did not want to get or do movies with people who were, trying to get him into their circle. He was not part of any gang. He wanted to stand on his own. A man who read so many books. सर जब आप इतनी किताबें पढ़ते हो ना आप अपनी जिंदगी कभी छीन सकते हो और ना आप कभी ये गंदमंद चीजों में जा सकते हो, क्योंकि आप इतनी नॉलेज अपने ब्रेन में रखते हो एंड यू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट देयर इज मच मोर देन मनी, एंड दैट इज व्हाट सुशांत सिंह राजपूत इज फॉर यू. And the reason why we are not watching movies, I do not agree that हिंदी movies में content नहीं होता है. बहुत अच्छी हिंदी movies भी बनती हैं. It is because of Sushant Singh Rajput that people are just seeing so much dirtiness in Bollywood, and we don't want to be part of it anymore. We don't want to see those people who have created this environment. That is the real reason. Okay. Yes, Rinku, please go ahead. You have been trying to connect for long, so please go ahead. रिंकू बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही रिंकू. हाँ अभी आ रही थी फिर गायब हो गई. Hello, yes sir. Good evening to one and all. Sir, आज की टॉपिक से भी हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं. मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि सुशांत सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व हैं आज की तारीख में जिन्होंने ऐसी कोई नई बात नहीं बताई कि बॉलीवुड में कितनी गंदगी थी और या कितना कुछ था या सब कुछ कितने माफिया थे. ये सब कुछ बातें नई थी, लेकिन लोगों ने पता नहीं क्यों कुछ ऐसी शक्ति थी या लोगों ने अपने आप को उससे इतना लिंक किया, अपने आप को इतना कनेक्ट किया. दे फेल्ट दैट वी ऑल आर डिच्ड बाय द बॉलीवुड एंड बॉलीवुड हैज चेंज नथिंग. हम आज की तारीख में भी देख रहे हैं कि बॉलीवुड ने अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाया है. बॉलीवुड वही कर रहा है जो वो पहले कर रहा था और आज भी वो दबंगई वहां चल रही है. आज भी वहां पर वही सारी चीजें चल रही हैं और इसलिए लोग नाखुश हैं. कोई सिस्टम पूरा बदल दे, पूरा बॉलीवुड के सारे लोगों को खदेड़ करके नए प्रोड्यूसर बना दे, नए फिल्म इंडस्ट्री को सेटअप कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन लोग आज की तारीख में जो जया बच्चन के साथ कोई नहीं खड़ा है, आज जैकलीन के साथ कोई नहीं खड़ा है और लोग दबे जुबान में बोलते हैं फलाने का हाथ है, फलाने का हाथ है, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ बोलना ही है और पीपल आर एक्सपोज्ड.
अब आज की तारीख में लोगों को ये सब समझ में आ गया है बिकॉज ऑफ सुशांत कि यहाँ पे दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। एक जो कि एक्टिंग करने के लिए आते हैं, चाहे वो घर छोड़ के आते हैं, दौड़ के आते हैं, कुछ भी करके आते हैं, एंड दे fight till their end and they are giving good work, they are showing good work, but being they are not surviving there. But there are certain bully people here, those who are managing things, manipulating things, and these people are not any more actors, they are the one who are after money. Let it be the मुझे Panama एक चीज बताइए, इनको मैं आपका एकदम आपकी बात ना बिल्कुल सही है, क्योंकि आज मैं एक चीज को गौर कर रहा था कि पहले ना हाँ, राज कपूर वॉज एन एक्टर, ठीक है, yeah. राज कपूर एक्टर के बाद प्रोड्यूसर टर्न कर गए, डायरेक्टर टर्न कर गए, ठीक है। अब सुभाष घई वॉज अ डायरेक्टर, ओके, यश चोपड़ा वॉज अ डायरेक्टर, मैंने मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, ये सब लोग बड़े डायरेक्टर्स थे, ओके, बड़े डायरेक्टर्स बड़ी फिल्में बनाते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी इतनी सेल्फी खिंचवाई होगी, इतने पिक्चर्स खिंचवाए होंगे, इतना खुद को प्रमोट किया होगा, इतने पार्टी के बारे में बात की होगी, इतने सारे जंकेट ऑर्गेनाइज किए होंगे। आजकल के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो एक्टर से ज्यादा पिक्चर खिंचवाते हैं और वो सोशल मीडिया में एक्टर से ज्यादा इन्वॉल्व है। ऐसी क्या तमन्ना है कि आप एक्टर से ज्यादा एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं? भाई आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बन के रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, उनके जो सर्वा हैं जिनको माना जाता है इस इंडस्ट्री के गेटकीपर, वो ऐसे पिक्चर्स खिंचवाते हैं जैसे इंडस्ट्री में सबसे बड़े स्टार वही हैं। अरे भाई आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं तो आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहिए, पहले भी तो थे ना। इतनी तमन्ना इतनी ज्यादा क्यों है कि आप प्रोड्यूसर का भी स्पेस लेंगे, डायरेक्टर का भी स्पेस लेंगे, एक्टर से ज्यादा एक्टर बन जाएंगे बाय गेटिंग ऑल द पिक्चर्स। हर मैगजीन, हर जगह इन्हीं की पिक्चर छपती है, इन्हीं को पाउच बनाना होता है, इन्हीं को साइड फ्रेम देना होता है, इन्हीं को प्रोफाइल पिक्चर लेना होता है। क्यों? व्हाई? इज ही एन एक्टर? इज ही शेयरिंग द स्क्रीन? सर, अब लोगों की आंखें इसलिए नहीं खुल गई है कि कौन क्या कर रहा है। कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे वो गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है, वो करता आ रहा है। और ये जो बुलिंग है ना, वो खत्म नहीं हुई है। जिसके ऊपर उनकी 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 कब्जा है, जिनके ऊपर उनका होल्ड है, वो होल्ड अभी भी बना हुआ है और वो बरकरार है और उसको वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका जो एक लाइफ स्टाइल है या जो उन्होंने अपने आप को बॉस बना के रखा है, उसको वो जाने नहीं देना चाहते। और वो बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें हैं, चाहे वो कोई फिल्म फेयर अवार्ड हो, चाहे कोई फंक्शन हो, वो हर जगह नजर आते हैं। चाहे वो एक छोटा सा टीवी का प्रोग्राम हो, चाहे वो फिल्म मैगजीन्स हो, हर जगह वो छाए रहते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बड़े स्टार्स के साथ वो जुड़े रहते हैं। वो क्यों जुड़े रहते हैं? क्योंकि आज फिर से पॉलिटिक्स के को एक एग्जाम्पल लेकर के बताना चाहूंगी कि जैसे कि आज की तारीख में बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने अगर सफेद कुर्ता पहन लिया, सफेद टोपी लगा ली और मैंने जा करके चार लाइनें बोल दी माइक लेकर के, तो मैं नेता कहला दूंगा। तो लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह से अगर आप सिर्फ फिल्में बना रहे हैं और लोग आप जो है मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो आज की तारीख में इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये लोग एक्सपोज हैं। आप गमले में उगा करके, गोभी उगा करके आप जो है फार्मर बन जाते हैं, तो उस तरह से आप जो है बाउट्स के सेल्फीज लेकर के आप बहुत बड़े एक्टर नहीं बन जाते हैं। आप जो है भाईजान बन करके या कोई भी जान बन करके आप जो है फिर एक आप लकीर नहीं खींचते हैं। यू आर नॉट क्रिएटिंग अ benchmark for the generations to come and follow you as an actor. You are not creating that. You are more a businessman. You are more a person who is in tax saving, who is manipulating the judiciary, who is managing. And you know, these people have taken for granted. ऐसा ही होगा। कोई इंसान आएगा, फिल्म इंडस्ट्री में चमकेगा, थोड़ी एक दो मूवीज करेगा, उसके बाद वो सुसाइड करेगा और फिर सुसाइड की स्टोरी खत्म हो जाएगी। फिर तब तक हम दूसरे को ले आएंगे और हम बने रहेंगे, क्योंकि हमारे को तो एक लंबा रास्ते में जाना है। ये आए और इनको हमने किक आउट करना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट पीपल आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी मोर, एंड दिस इज व्हाट, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू।
because of the internet, because of the mobile, and everything is coming to one and all. The things are coming to masses. Now we people are able to voice up. We people are able to speak. We people are able to propagate our thoughts. अगर आप अगर अगर मुझे किसी एक शो में बोलने का मौका नहीं भी मिलता है, तो मैं 4 लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कनेक्टेड हूँ, तो मैं वहां पर अपनी बात रखती हूँ कि नहीं, ऐसा गलत होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक लोगों ने समझ लिया है कि सच्चाई जो है ना, अब वो दबाए नहीं दब रही इनसे। Okay. और जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये मुंह की खा रहे हैं। जितना ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो जो छन्नी में छेद बता रही थी ना, तो आज उनके घर के छेद नजर आ रहे हैं कि उनकी नाव में ही छेद कितना बड़ा है। Okay. तो सर ये just stay on Rinku 1 minute. एक बार मैं प्रमोद से फाइनल ले लूं कमेंट, उसके बाद आई विल कम टू टेक क्लोजिंग कमेंट्स। रेनू आप हो तो प्लीज कनेक्ट करो, आई विल पुट यू ऑन एयर। मैं उस वक्त कर देता, बट रिंकू वाज ऑलरेडी टॉकिंग। रेनू आपको आवाज आ रही है? Yes, Pramod, quickly conclude. Yes, sir. First of all, I don't think there was no suicide. That's one thing. And I don't think we should pay any heed to any stars ever in our lives. That is the lesson we need to learn. If the content is good, we should watch it. If the content is not good, we should not watch it. That's So all. basically you're saying that you should go by content and not go by the star. Yes, and the real stars of any movie are the technicians. We should give them the credit where it's due. The one who are there behind the scene. Yes, Agree. as in Agree. the cameraman Agree. or even lights in. आप Fully गुरुदत्त का anybody, picture आप anybody देखे is होंगे। behind the scene. आप But they are गुरुदत्त never recognized. They are never they recognized. never recognize. तो उनको दीजिए ना। So at least, I mean, don't give them crores and all, yeah. At least give them a few 50, 60,000. Fair income. I agree with you. Yeah, so उतना तो देना चाहिए, बस they'll be happy with that. Perfect. I think we should come to a culture wherein we respect their craft and we should respect whatever income they deserve. That's it. Perfect. And not crores and whatever, or somebody who just comes and dances with leaves or whatever and nonsense. That they don't deserve anything. I seriously hope someday, I pray one day, people in India, I don't even care about these stars. They will do whatever they want. उनको चाहिए वो लेंगे. And in the words of my father, late father, I will only say, people who make you fools are not wrong. People who are becoming fools are wrong. Absolutely correct. I तो agree. गलती हमारी ही है, हम अपने आप को सुधारें तो हम ठीक रहेंगे, बस. Perfect. Thanks. That's all, sir. Thank you. Thanks. Yes, Rinku, please, 1 second. Rinku. Yes. Yes, Rinku, please go ahead. Conclude. Sir, now with Sushant, people have there is a great change in people's perception. Now people are appreciating more the stars, the real stars. They are not going by the stars who are on screen. So this is a great change we have seen. And not only this, we say that people make you fool, but the days are gone. Those days are gone. No, now nobody is ready to accept the hypocrisy these people have been doing. And not only this, one more thing I was always saying, and I always believe that too much money, wherever you find too much money involved with little effort, जिसने खून पसीने की कमाई लगाई हो, जिसने खून पसीने से पैसे कमाए हो, तो उसकी अहमियत समझ में आती है। 4 ठुमके पे और 4 बाउट बनाने पे, 4 कपड़े छोटे पहनने पे, बड़े पहनने पर, 2-4 लटके झटके पर अगर करोड़ों रुपए इंसान लुटा रहा है, तो ये बहुत ही गलत है और ये बंद होना चाहिए। एक बॉर्डर पे खड़ा सिपाही, जहां उसके हाथ गल जा रहे हैं ठंड में, पैर गल जा रहे हैं, उसको कुछ हजार रुपए मिलते हैं, और ये उस सिपाही पर बनी हुई फिल्म पे करोड़ों रुपए कमाने वाले व्यक्ति अगर हमारे हीरो बन रहे हैं, तो इट इज हाई टाइम फॉर अस टू थिंक अगेन एंड अगेन, एंड पीपल हैव रियलाइजिंग, people have started thinking and acting over it.
So now we have Samir Wankhede, a hero. We have Abhinandan as a hero, and people are realizing, people are coming up with that. They are not ready to accept Shah Rukh Khan anymore. See, in अगर आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस को आप जानते होंगे, पॉलिटिशियंस हैं, आते हैं, लोग उनको देख लेते हैं, जाते भी हैं, देख लेते हैं, बट दे डोंट गिव एनी रेस्पेक्ट टू देम. उनके पास करोड़ों रुपए होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में जा रहे होंगे. भाई गाड़ी भी तो रोड पे ही चलती है ना, करोड़ों की गाड़ी हो उसी रोड पे चलेगी. आपकी मारुति 800 है, वही वहां पे चलेगी. रेंज रोवर भी उसी रोड पे चलेगी, उसी ट्रैफिक लाइट पे रुकेगी. तो फिर फर्क क्या रह गया? लोगों को समझ में आ गया कि हम ये जो है, जो बहुत हीरो बन रहे हैं, ये हीरो बनने लायक नहीं है. उससे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये जो चेंज आ गया है ना लोगों में, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सुशांत. आई मस्ट से ही इज अ चाइल्ड who has brought up, his sacrifice is not going in vain. People have really woken up, and I wish this spirit should be continued till the great change which we desire for, which we are looking for, comes in film industry. This is a Perfect. this we want. Thanks, Ringu. Thanks a lot. Thank I think that's about it. I don't think we will stretch this any further because the basic point is clear. आप उन चीजों को रिकॉग्नाइज कीजिए जो अच्छी हैं. आप कंटेंट को वैल्यू कीजिए, कंटेंट को देखिए, उसको सराहिए. जो काम अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए. डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ गोइंग बाय अ ब्रांड. एक ब्रांड जो होता है वो आप बनाते हैं, और जब वो ब्रांड खराब होता है तो फिर उस ब्रांड को दोबारा एस्टेब्लिश करना उतना आसान नहीं होता है. और आपने एक ब्रांड को डिस्टर्ब कर दिया, वो ब्रांड अब वो ब्रांड नहीं रहा. इसको दोबारा खड़ा करना उतना आसान नहीं होने वाला है जितना आसान आप सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इस ब्रांड को क्रिएट किया. आज लोग इस ब्रांड से खुश नहीं है, उनको लगता है किसी और ब्रांड की जरूरत है और वो दूसरे ब्रांड की तलाश में. जिस दिन उनको बेहतर ब्रांड मिल जाएगा उस दिन ये ब्रांड मार्केट से बाहर हो जाएगा. ऐसा मत कीजिए कि ऐसी सिचुएशन आए. प्लीज इंप्रूव एंड करेक्ट द ब्रांड, विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज ब्रांड का अगर एक बार डिटोरिएशन हो जाए तो फिर उसका इंप्रूवमेंट डिफिकल्ट होता है. बट देन देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल. बॉलीवुड के पास अब भी वक्त है. अब भी समझे कि उसका सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रिकेरियस है. पब्लिक में परसेप्शन, पब्लिक में इंप्रेशन, पब्लिक में रिस्पेक्ट, बॉलीवुड धीरे धीरे खोता चला जा रहा है. अगर उसको बरकरार रखना है तो फिर आपको बदलने की जरूरत है, पब्लिक को नहीं. पब्लिक तो वो करेगी जो उसको सही लगता है. आप पब्लिक के कारण बने हैं. आज भी पब्लिक को ढूंढिए. अगर पब्लिक नहीं तो आप नहीं. आप हैं, पब्लिक है तो आप हैं. पब्लिक है तो अमिताभ बच्चन है, पब्लिक है नहीं तो अमिताभ बच्चन भी नहीं, न उनकी फिल्में, न ये इंडस्ट्री. सो बगैर पब्लिक के कुछ भी नहीं है. जिस पब्लिक ने आपको सर पे चढ़ाया, आज आप कहते हैं वो पब्लिक एक नेगेटिविटी से सफर कर रही है, एक टॉक्सिक नेगेटिविटी उसके अंदर है. ये टॉक्सिक नेगेटिविटी नहीं है. वो एक फिल्म थी तेजाब, जो आपकी इंडस्ट्री ने बनाया था, और उसमें एक डायलॉग था कि तेजाब आया कहां से. ये पब्लिक आज पूछ रही है तेजाब आया कहां से. क्यों? क्योंकि अगर आपके मुताबिक ये लगता है कि आपको ये टॉक्सिक है, जहरीला है ये नेगेटिविटी, तो इस नेगेटिविटी को क्रिएट किसने किया? ये जहर फैलाया किसने? ये तेजाब डाला किसने एनवायरमेंट में? आपने डाला है, आप ही हटाओगे. अगर आप हटा लोगे, पब्लिक फिर दोबारा आपके पास आ जाएगी. वरना जब तक चीजें आप करेक्ट नहीं करोगे, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और इसको मालूम है क्या करना है. आप सोचिए आपको क्या करना है. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. This was a session on Sushant Singh Rajput's effect post and before his death. That is on 14th of June, a date which is there in the memory of all of you, because you want to know exactly what happened with the actor that you loved so much on the 14th of June 2020. Was it a suicide or a murder? CBI is investigating, but for now, what appears is very clear, that Sushant Singh Rajput may have made a difference before his death, but he is making a difference even after his death. Good night, take care, and stay connected. Don't take risks, because COVID is dangerous and still spreading. So don't take any kind of a risk. Your family is important, you are important, your health is important. Stay connected, stay safe. Come back tomorrow to listen to something else and talk about something else. Thanks a lot.